Hello students, you heard different types of sounds in your nearby surroundings like rattling of vehicles, sound produced by the television, musical sound produced by musical player. But these sounds are produced by non-living things. It is also possible that living things produces the sound. For example, barking of a dog, roaring of a lion, talking of two human beings. These are the example of the living things which produces the sound. But is it there that every sound spends some energy to produce it? How sound of one person or how the sound of one object is different from another object. Let us understand this with some terms. So, today's topic is sound and I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy to introduce with this topic, sound. We hear different kind of sounds in our nearby surroundings. All the sounds are different from one another. How these sounds are different from one another, उसको समझने के लिए हम कुछ टर्म्स जो है पहले वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस वजह से जो है वो साउंड्स जो है वो हमारी डिफरेंट हो सकती हैं. सो द वेरी फर्स्ट टर्म इज ऑसिलेशन. वेरी फर्स्ट टर्म इज ऑसिलेशन. Oscillation is one to and fro movement of an object. Of an object you can say, or one to and fro movement means like previously I take the example of a pendulum. This is the center or the rest position and pendulum moves to up to this side and fro up to this side, up to this distance. So when pendulum moves from this position to this position and after comes it to rest position, this is known as one oscillation. One oscillation is completed. Okay, but for the sound to produce or oscillation to produce, the object should be the vibrating one or oscillating object. ठीक है, one to and fro movement of an, you can write it as one to and fro movement of an vibrating or oscillating object, or you can say one to and fro movement of an object within bracket vibrating or oscillating object. But what is one oscillation produced in how much time? That is known as time period. Time period means time taken for one oscillation to complete. एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लिया है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड कहा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से एंड इसकी यूनिट जो होती है वो जनरली होती है सेकेंड्स. ठीक है, अब सेकेंड्स भी हो सकती है, मिनट्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, बट जनरली जो है वो सेकेंड इसकी यूनिट होती है. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, number of oscillations completed in a unit time, that is known as frequency. ठीक है, उस एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी ऑसिलेशंस जो है वो कंप्लीट हुई हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. अब एक पेंडुलम है जो मूव कर रहा है बहुत फास्ट, तो आप उसको क्या कर सकते हो? एक सेकंड में उसने कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट की हैं वो आप मेजर नहीं कर सकते. तो उस केस में आप क्या करोगे? जितनी ऑसिलेशंस आप मेजर करोगे, मान लो आपने 20 ऑसिलेशंस मेजर की हैं,
20 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड जो है वो आप मेजर करो और वहां से आप क्या कर सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो या उसका टाइम पीरियड जो है वो एक ऑसिलेशन का कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द ऑसिलेशंस में बेसिकली दो चीजें थी, वन टू एंड फ्रो मूवमेंट। टू एंड फ्रो मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होगा, कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, उस मूवमेंट को कंप्लीट करने के अंदर आपका कुछ डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। ये चीज होती है ऑसिलेशन के अंदर। टाइम पीरियड क्या था, एक ऑसिलेशन कवर करने में कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी एंड इट्स यूनिट इज सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, एक यूनिट टाइम पीरियड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस जो है वो कंप्लीट हुई, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ, स्मॉल एफ, ठीक है। और इसकी यूनिट जो होती है वो जनरली क्या होती है, हर्ट्ज होती है। बट इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रीक्वेंसी को सिर्फ हर्ट्ज में ही मेजर करोगे, ठीक है। आप इसको किलो हर्ट्ज में, दिस इज नोन एज कैपिटल के एच जेड। 1 किलो हर्ट्ज जो है दैट इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, ठीक है। किलो हर्ट्ज में भी मेजर कर सकते हैं। एंड 1 मेगा हर्ट्ज, this is known as mhz is megahertz। khz फ्रीक्वेंसी का यहां पर मैंने यूनिट लिखी थी, दैट इज f is equal to hz, that is hertz, and this khz is known as kilohertz। किलो hertz, mhz is known as megahertz, ठीक है। एंड मेगाहर्ट्ज इज 1000, 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 किलोहर्ट्ज, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को मेजर करते हैं। नाउ वन मोर थिंग इज रिलेटेड टू द साउंड, दैट इज एम्पलीट्यूड। दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस covered by an object in one direction। Amplitude is the maximum distance, the maximum distance covered। जब भी मैं साउंड चैप्टर में ऑब्जेक्ट की बात करूंगी, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट और oscillating object। The maximum distance covered by an object in one direction, that is known as amplitude, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब एग्जाम्पल मैं देती हूं, एम्पलीट्यूड को हम मेजर कैसे करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि पेंडुलम जो है उसका टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है दैट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो पेंडुलम का क्या था, ये था रेस्ट पोजीशन और यहां से वो मैक्सिमम मान लो 2 पोजीशन पर यहां गया और फ्रो पोजीशन पर यहां तक उसने डिस्टेंस कवर किया। सो दिस इज, एक डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस उतना उसने कितना कवर किया है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। सो ये रेस्ट अगर पोजीशन है तो रेस्ट पोजीशन से उसने क्या किया, मैक्सिमम ये डिस्टेंस कवर किया है। सो दिस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। जो ये डिस्टेंस कवर किया है इसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कैसे मेजर करते हैं, एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं। अब स्मॉलेस्ट ऑसिलेशन जो आपका मतलब ईयर जो है डिटेक्ट कर सकता है, दैट इज द साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम का जो डायमीटर है उस साइज की साउंड, मतलब उस वाइब्रेशन की साउंड जो है, उस फ्रीक्वेंसी की साउंड जो है वो आपका ईयर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड्स, वन इज infrasonic and another one is ultrasonic। one is infrasonic sound and another one is ultrasonic sound, ठीक है। देखो आपने सुना होगा, पढ़ा भी है इवन प्रीवियस क्लासेस में कि a human body is able to detect the sound between 20 hertz to 20 kilohertz।
ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की जो साउंड्स हैं वो क्या कर सकता है, ह्यूमन जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। बट व्हाट इज दिस इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड? इंफ्रासोनिक साउंड जो होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेस देन की जो वाइब्रेशंस हैं दे कम अंडर इंफ्रासोनिक साउंड्स। और जो 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की जो साउंड है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की जो साउंड है, दैट कम्स अंडर द अल्ट्रासोनिक साउंड। अब इंफ्रासोनिक साउंड आप कहोगे जब मैडम ह्यूमन डिटेक्ट ही नहीं कर सकता 20 हर्ट्ज से बिलो की साउंड को या 20 किलो हर्ट्ज से अबव की साउंड को, सो वो साउंड एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं उसका कैसे पता चलेगा? दूसरी चीज ये है कि ये साउंड्स जो हैं ये जब हमारे काम की ही नहीं है तो इन साउंड्स को प्रोड्यूस कौन करता है? तो देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू डिटेक्ट बियॉन्ड दिस रेंज। इस रेंज के बियॉन्ड जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारे क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं साउंड को। ठीक है, अब जब बात करते हैं, पहले इंफ्रासोनिक साउंड बता देती हूं मैं फिर से। इंफ्रासोनिक साउंड जो होती है दैट इज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात कर रही हूं, फ्रीक्वेंसी किसकी है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की है। सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन of an object is less than 20 hertz, then those vibrations are known as infrasonic sound. Infrasonic sound you can say, or vibrations you can say. ठीक है, अब if similar definition यहां पे लिखेंगे, if the frequency of vibration of an object is greater than 20 kilohertz, then those vibrations are known as ultrasonic vibrations. इसके अलावा अब क्या है, कुछ अब 20 किलो हर्ट्ज से अबव की पहले मैं बात करती हूँ। 20 किलो हर्ट्ज से अबव की जो, देखो मूवीज में तुमने देखा होगा, बेस्ट एग्जाम्पल, डॉग्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं किसके लिए, सर्च के लिए। जब बहुत ही हमारे पास क्या हो, एक फॉरेंसिक हमें या मतलब कोई हमें क्या करना हो, इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तो वहां पर डॉग्स जो है उसका यूज किया जाता है। पर वो डॉग्स आपके वो स्ट्रीट डॉग्स नहीं है, दे आर द ट्रेन्ड डॉग्स। तो डॉग्स को ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। उससे क्या होता है, और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक विसल यूज की जाती है, दैट विसल इज नोन एज गेल्टन विसल। ठीक है, उस विसल का नाम होता है गेल्टन विसल। ये विसल जो है दैट इज एबल टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ 40 किलोहर्ट्ज, जो आपको सुनाई नहीं देगी, बट ट्रेन्ड डॉग्स आर एबल टू लिसन इट, वो उसको लिसन कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रेन किया जाता है। तभी जो है certain specific types of dogs are used in the investigations. तो 20 किलोहर्ट्ज से अबव की साउंड जो है वो यूज की जाती है, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो यूज की जाती है किसके लिए, डॉग्स के लिए। अब बात आती है लेस देन 20 हर्ट्ज साउंड, 20 हर्ट्ज साउंड, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम की साउंड को कौन यूज करता है, कहा जाता है, और इसी को हम बेसिकली साउंड कहते हैं। इसीलिए वहां पर टर्म जो है वो मैंने यूज किया था वाइब्रेशंस। यहां पर ये सोनिक वाइब्रेशंस हैं, और यू कैन से दैट इट इज अ साउंड। ये क्या है, बेसिकली हमारी साउंड है। अब बात करते हैं कि इन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस।
नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स। अल्ट्रासोनिक साउंड्स की एप्लीकेशन क्या है? सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो है दैट इज बैट्स यूज दिस वाइब्रेशंस। बैट्स जो है वो इस वाइब्रेशंस को यूज करते हैं किसके लिए? जो हमारे पास बैट जब फ्लाई करता है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस करता है 50 हर्ट्ज से लेकर के 80 किलो हर्ट्ज तक की। और जब ये फ्रीक्वेंसी किसी इंसेक्ट से स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। रिफ्लेक्ट बैक होने के कारण जिसको बैट जो है वो हियर कर सकता है और ये पता लगा लेता है कि उसका प्रे या इंसेक्ट जो है जिसको उससे क्या करना है, हंट करना है, वो कितनी डिस्टेंस पर है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इकोलोकेशन। दिस इज नोन एज इकोलोकेशन। ठीक है, द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। नाउ द सेकेंड इज यूज्ड इन सोनार। सोनार के अंदर भी जो है वो यूज किया जाता है। सोनार के अंदर जो है वो यूज किया जाता है किसको? सी बेड की, जो समुद्र की गहराई है, सी बेड की डेप्थ को मेजर करने के लिए। डेप्थ मेजरमेंट के लिए सोनार के अंदर इसको यूज किया जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स जो है ह्यूमन बॉडी के, उनकी इमेज जनरेट करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस को यूज किया जाता है। ठीक है, लाइक सीटी स्कैन वगैरह में अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड वगैरह में कौन सी वाइब्रेशंस यूज होती है? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस यूज होती है। मेटल के अंदर आपका कहीं जो है वो क्या प्रॉब्लम है या उसके अंदर क्या आपका फॉल्ट आ रहा है, दैट इज ऑल्सो एबल टू डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ द ultrasonic vibrations. So the fourth application is detect flows inside the metals. And the fifth application is dogs training. Dogs training के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गेल्टन विसल करके होती है जो 40 किलो हर्ट्ज की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है और डॉग्स की ट्रेनिंग की जाती है। डॉग्स को ट्रेनिंग जो है उस विसल के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूं कि बैट्स जो है वो आपके इस रेंज में जिस तरीके से इकोलोकेशन को यूज करके बैट्स अपने प्रे को डिटेक्ट करता है, इन द सिमिलर वे डॉल्फिन इन द सी ऑल्सो डिटेक्ट्स इट्स प्रे अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फिनोमिना दैट इज नोन एज इकोलोकेशन। नाउ अब मैंने बता दिया कि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस की जो एप्लीकेशन है वो कहां पर है। अब हम डिस्कस करते हैं कि साउंड जो है वो कैसे प्रोपोगेट करती है। कभी आपने देखा है कि आप टेबल के ऊपर बैठो, टेबल के दो एंड्स पे आप दो फ्रेंड्स बैठे हो, ठीक है, एक ने हेड डाउन कर रखा है और अपना ईयर जो है वो टेबल के ऊपर रख रखा है, और दूसरा अगर आपका ब्रदर सिस्टर फ्रेंड जो भी है वो क्या करेगा, उस टेबल को हिट करेगा तो आप जो है उस साउंड को सुन सकते हो। मीन्स दिस इज द टू, सपोज करो ये आपके पास एक टेबल है, इस वाले पॉइंट पर आपने क्या कर रखा है, अपना कान रख रखा है, ठीक है, और इस पॉइंट पर आपका फ्रेंड जो है वो इसको हिट करता है तो आपको वो आवाज जो है वो इस तरफ भी सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? बिकॉज साउंड प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड। साउंड जो है वो सॉलिड के थ्रू प्रोपोगेट करती है। इससे भी बेस्ट एग्जांपल आप करके देखना अपने उसके अंदर, घर के अंदर, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड एंड गैस। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड्स एंड गैस। एक पाइप लेना, ठीक है, एक पाइप के एक एंड, दो एंड होते हैं पाइप के, उस एक एंड के ऊपर आप जो है वो अपना ईयर लगाना, दूसरे पाइप दूसरी साइड जो है, जरूरी नहीं है कि आप मेटल का पाइप लो, ठीक है, कोई भी पाइप ले सकते हो, प्लास्टिक का भी ले सकते हो, दूसरे साइड पर आप उसको किसी मेटल से हीट करना, ठीक है, या किसी और चीज से हिट करना, तो क्या होगा, आपको दो अलग तरीके की साउंड जो है वो सुनाई देंगी। एक साउंड तो आपको वो सुनाई देगी जो सॉलिड से ट्रेवल होकर के आपके ईयर्स तक पहुंच रही है,
दूसरी साउंड आपको वो सुनाई देगी जो वो होलो पाइप के अंदर मीन्स क्या है कि उसके अंदर क्या है, एयर फिल्ड है। तो दूसरी साउंड वो है जो एयर से या गैस के थ्रू प्रोपोगेट होकर के आपके ईयर्स तक पहुंच रही है। अब जो गैस के थ्रू प्रोपोगेट होकर के आपके ईयर तक पहुंच रही है वो साउंड ज्यादा होगी, लाउडर होगी और क्लियर होगी एज कंपेयर टू द साउंड जो सॉलिड के थ्रू प्रोपोगेट होकर के आपके पास पहुंचेगी। लेकिन जो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। सो अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसके अकॉर्डिंग क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड के अगर मैं कंपैरिजन करूं तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज ग्रेटर देन गैस देन द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू गैस। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो है जो सॉलिड के थ्रू आ रही है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू गैस। इसीलिए जो सॉलिड से साउंड रीच होगी इस एग्जाम्पल के अंदर, पाइप के वाले एग्जाम्पल के अंदर, वो आपके पास पहले पहुंचेगी आपके ईयर के पास, और जो गैस से ट्रेवल होकर के साउंड आ रही है वो आपके पास बाद में पहुंचेगी। बट गैस वाली जो साउंड होगी दैट इज मोर क्लियर एज कंपैरिजन टू द साउंड दैट इज प्रोपोगेटिंग थ्रू द सॉलिड। अब सॉलिड और गैस का तो मैंने बता दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी साउंड जो है वो क्या लिक्विड से भी प्रोपोगेट करती है, बिल्कुल करती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू लिक्विड। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू लिक्विड्स। लिक्विड से वो कैसे प्रोपोगेट करती है? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड लिक्विड्स के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। दिस इज वाटर, a glass filled with water, half filled with water, and a coin is placed in bottom of the glass. Now this is the another coin, and if I drop this coin above this coin, this produces the sound. ठीक है, ये देखो ये कॉइन जो है अभी तक मेरे हाथ में है और मैं इसको ड्रॉप करूंगी तो आपको भी आवाज इसकी सुनाई देगी एग्जैक्टली अबव द रेस्टिंग कॉइन, यू विल लिसन द साउंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है लिक्विड जो है, लिक्विड में भी साउंड जो है वो प्रोपोगेट करती है। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट अगर आप दोबारा रिपीट अपने घर पे करोगे तो दोनों में साउंड, एक एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपको करके दिखा दिया, दूसरे में क्या करना है आपको कि गिलास के साइड में कान लगाना और फिर किसी को, अपने ब्रदर या सिस्टर को बोलना वो एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर फिर से कॉइन को ड्रॉप करें, तो आपको पहले से ज्यादा लाउडर साउंड जो है वो सुनाई देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वाटर के अंदर, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज ग्रेटर देन इन गैस। ठीक है, अब एग्जैक्टली ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती कैसे है उसके लिए आपको एक और फिनोमेना मैं एक्सप्लेन करती हूं, जिसके लिए पिक्चर अब मैं बोर्ड पर ड्रॉ करूं। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। Vibrating object, as I told you, that it shows to and fro movement. So this dotted line shows the to movement and this is showing the fro movement. When this is moving forward, means the vibrating object is moving forward, then the air in front of it get compressed, and let I draw the compressed air like this. ठीक है, ये कंप्रेस्ड एयर है। इस तरीके से हमारी क्या होगी, रेयर एयर मॉलिक्यूल्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, और ये जो है ये एक हाई प्रेशर रीजन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नाउ दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ हाई प्रेशर रीजन। ये जो रीजन है दिस इज हाई प्रेशर रीजन। जब आपका वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, आगे की साइड फॉरवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। नाउ दिस is known as compression. This is known as compression.
नाउ व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूविंग बैकवर्ड, जब वो बैकवर्ड मूव करेगा तो अब वो क्या होगा, बैकवर्ड मूव करेगा तो ये जो हाई प्रेशर रीजन पहले क्रिएट हुआ था वो क्या होगा, अब आपका लो प्रेशर रीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज द लो प्रेशर रीजन and it is known as rarefaction. इसको क्या कहा जाता है, rarefaction कहा जाता है. Now again when the vibrating object is moving forward, जब वो फॉरवर्ड मूव करेगा फिर से हाई प्रेशर रीजन जो है वो क्रिएट होगा. फिर से वो बैकवर्ड मूवमेंट करेगा, फिर से आपका लो प्रेशर रीजन जो है वो क्रिएट होगा. इस तरीके से जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो वेरी फास्ट मूवमेंट, वाइब्रेटिंग मूवमेंट या टू एंड फ्रो मोशन शो करता है तो उस केस में ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन जो है ये बहुत फास्टली क्रिएट होते हैं. ड्यू टू विच अब ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन यानी कि हाई प्रेशर रीजन और लो प्रेशर रीजन जो क्रिएट हुआ ये जब एयर के थ्रू प्रोपोगेट करता है जिसकी वजह से क्या करते हैं, आपको साउंड जो है वो सुनाई देती है. अब होता क्या है कि जब ये ऑब्जेक्ट जो है ये टू एंड फ्रो मूवमेंट इसकी फास्ट होगी तो इस तरीके के सीरीज कॉम्बिनेशन किसके, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के, यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन के क्या होगा, एक सीरीज जो है वो जनरेट होगी. अब ये सीरीज जो है जब वो प्रोपोगेट करेगी तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, साउंड सुनाई देगी. अब जब ये सीरीज प्रोपोगेट करेगी तो ये किसके थ्रू प्रोपोगेट कर रही है, एयर के थ्रू प्रोपोगेट कर रही है जनरली. तो एयर के अंदर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं. वो मॉलिक्यूल्स भी हमारे टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है वो शो करेंगे. जब वो टू एंड फ्रो मूवमेंट शो करेंगे तो इट मीन्स कि साउंड जो है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर. साउंड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है. ये हमें कैसे पता चला कि जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन जो है ये प्रोपोगेट करेगा, ये किसके थ्रू प्रोपोगेट कर रहा है, एयर के थ्रू प्रोपोगेट कर रहा है. तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट शो करेंगे जिसकी वजह से हमें ये टू एंड फ्रो मूवमेंट मींस अपनी पोजीशन से या तो आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन हाई प्रेशर रीजन एंड लो प्रेशर रीजन. तो उसकी वजह से हमें ये पता चला कि साउंड जो है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर. साउंड जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती है. अब ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन जो मैंने बात की यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने टर्म यूज की प्रेशर. प्रेशर जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल के ऊपर. इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. ठीक है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यू कैन से, और डेंसिटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि यहां पर अब मीडियम जो है वो आपका क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस है. ठीक है, तो वो जनरली गैस ही होता है जब हमारा मीडियम है. जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, एयर इज द मीडियम. तो उस केस में जो ये प्रेशर है ये हमारा डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर. और डेंसिटी ऑफ द मीडियम जो है दैट इज, if density of the medium is more then pressure is more, and if the density of the medium is less then pressure is less. ठीक है, so you can say it is vice versa. If density of the medium is more then pressure is more, otherwise it is vice versa. अगर density कम हो जाती है तो pressure जो है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. अब इसीलिए हम प्रोपोगेशन ऑफ साउंड को कैसे देख सकते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर वेरिएशन. प्रोपोगेशन ऑफ साउंड को कैसे देखा जा सकता है, प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर वेरिएशन. प्रेशर वेरिएशन कैसे, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर. इस तरीके से इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं. नाउ टुडेज टॉपिक इज ओवर. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. स्टिल इफ यू आर फेसिंग any problem what I teach you today, you can comment me in the comment box.
Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.